Hello everyone, good morning to all of you. Here in this institute VSC has done thousands of selections of students. With this flow, I first time last 3 years success journey special for IS/OS batches launch karichu in the VSC. बहुत students हमारा selection भी है and with this regard हमारा बहुत बढ़िया faculty from Delhi, from Bhubaneswar are in the touch, always guiding the students for the betterment and upliftment of students. The exam clear करिवारे exam को approach to the question is most important. The way we approach it defines our standard. So today in this section of our small class, this class will be completely devotional to environmental studies. हमें किसी questions देखिवा, we will see 4-5 questions. There we will find the best way, best approach how to progress. So let's have a look. Let's proceed. We will see the question and what is the best way to approach to solve a question. Now this is the question. This question is specifically asked on the Ramsar sites. This question is focused upon Ramsar Convention. Here are some options. We have to understand the options. For that we have to eliminate what best we can eliminate. That is the way to approach. In this way it is proving that the framework for conservation and wise use of wetlands. 90% of UN member states has become contracting parties. It does not, look at the meaning, it does not. There is a difference between does and does not. So that makes the difference, that makes the depth in the difference. It does not consider aquifers and human-made sites as wetlands. And another word is there, the Montreux record is maintained as part of the Ramsar list. So a lot of conflicts are there. We need to dilate, we need to go to diagonalize in them in detail. So what best we can do here is, we have to understand a little of this Ramsar Convention. Now we know that if this is an ecosystem 1, this is another ecosystem say 2, the transition zone between two ecosystems is known as ecotone. With this concept, if we will proceed, if this is an ecosystem of river, this is an ecosystem of land, the transition zone between river and land is known as a wetland. अब हमारा बात wetland पे आ गया है कि wetland होता क्या है. अगर हम चाहते हैं कि वेटलैंड को आइडेंटिफिकेशन करें, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड कि हाँ भाई वेटलैंड है इसको बचाना है, फॉर ओनली आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, ये कहावत हमको देता है रामसर कन्वेंशन. रामसर इज ए सिटी इन ईरान. एक ईरान में मीटिंग हुआ था रामसर में. इट अडॉप्टेड इन 1971 बट बिकेम फंक्शनल इन 1975. तो रामसर कन्वेंशन इज ओनली स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड, नो अदर पर्पस. लेकिन अगर कोई वेटलैंड खराब हो रहा है या खराब होने की कगार में है या ऑलरेडी बीइंग डिस्ट्रॉयड, सी इन एनी वे इफ एनी वेटलैंड इज इन डेंजर देन वी हैव टू प्रोटेक्ट इट. So for wetland in danger, we have to protect this wetland. For protection of the wetland, there is another convention known as Montreux Record. Montreux Record. तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने पहले फोकस किया कि वेटलैंड का डेफिनेशन क्या है. वेटलैंड को आइडेंटिफाई करता है रामसर कन्वेंशन, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ही इसका काम है. लेकिन अगर वेटलैंड खतरे जोन में है तो उसको रखा जाएगा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. और ताजुब की बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 थे. एक था चिलिका लेक, एक है कियोला डियो नेशनल पार्क. Keoladeo Dio National Park, this is a national park of Rajasthan. Another one is Lokthak Lake. लोकथक लेक ये मणिपुर में है. यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क. दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया. तो ये पहले 3 आइडेंटिफिकेशन थे, 3 वेटलैंड थे जो डेंजर जोन में थे. हालांकि अभी चिल्का हैज बीन कम्ड आउट. चिल्का lake is no more available in the list of Montreux record. Now at present we have 2 more items, Keoladeo National Park and Lokthak Lake. So that is very clear. Questions आपको IAS में ऐसे भी आएंगे कि which of the following wetland has been removed from the list of Montreux record? चिलिका लेक. जब वेटलैंड की बात आती है तो सबसे बिगेस्ट वेटलैंड दैट इज चिलिका लेक. सबसे फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया दैट इज आल्सो चिलिका लेक. सो दिस इज द वे वी कैन अप्रोच टू द वेटलैंड theories. Now if you revert back to the system, looking to the questions what we have done, अगर आप 4th ऑप्शन देखोगे कि Montreux record is maintained as a part of Ramsar list, absolutely correct. It is absolutely correct. Now the second option it says
Second option it says, so question number 4 is correct. Question number 4 is correct. Question number 2, almost 90% of UN member states have added to become contracting parties. जी हाँ बिल्कुल, एक बार UN ने कन्वेंशन इसको बना दिया है तो इसमें 90% have completely agreed to this. कितनी अच्छी बात है, वेटलैंड आइडेंटिफाई हो गया, अगर वेटलैंड डेंजर में है तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हम डालेंगे. सो दीज टू कंडीशंस स्टैंड करेक्ट. 2 and 4 आर करेक्ट. अब इसने पूछा है, बोला है कि इट डज नॉट कंसिडर अंडरग्राउंड एक्विफायर्स. ये इंक्लूड करता है, आप इसमें लेक इंक्लूड कर सकते हो, रिवर्स इंक्लूड कर सकते हो, एक्विफायर्स इंक्लूड कर सकते हो, वाटर सेट इंक्लूड कर सकते हो. एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड. ह्यूमन मेड वेटलैंड साइट्स, एवरीथिंग कैन बी इंक्लूडेड बिकॉज वेटलैंड कंडीशन स्टेट्स बिटवीन द रिवर एंड लैंड कंडीशंस. इट मे बी एनी वाटर किंगडम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. सो it does include this, so this option stands wrong. First option is also wrong for the conservation and wise use of wetland. For the wise use of wetland we have Montreux record, not for the Ramsar convention, which is completely designed in the first statement itself. So as per the question number 1, second part is correct, fourth part is correct, 2 of our options are correct. So we will stand with our answer as a winning probability of 2 only. Only 2 are correct. How many statements? How many of the above statements are not correct? So see, here it is now not correct. So not correct means 2 are not correct. First is wrong, third is wrong. So how many are not correct? 2. 2 are not correct. Now, moving to the next question. The next question says, primary mechanism through which methane contributes to the global warming. So first of all, this is talking about the greenhouse gases. There are list of some eventualities, CO2, CH4, SOx, NOx, ये सब greenhouse gases हैं. प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस में 2-3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है. आपको ये पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कौन सा प्रेजेंट है? दैट इज वाटर वेपर. आपको पूछ लेगा कि एटमॉस्फेयर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल ऑफ द टाइम इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड. सो अगर आपको पूछा एसिड रेन किस किस इवेंट से होता है? सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स. अब ये बोल रहा है कि जो मीथेन गैस एमिशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो क्या इसमें से आंसर होगा? देखो, ये जो ऑप्शन सी है, प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक्स हैज नथिंग टू डू विथ ग्लोबल वार्मिंग. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू समवेयर रिलेटेड टू अर्थक्वेक. फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन एटमोस्ट्रेटोस्फियर. ओजोन तो हमें चाहिए, ओजोन का हक है, और गुड ओजोन वी नीड इट. सो ओजोन इज एसेंशियल. हाउ कैन दैट बी हार्मफुल? सो दिस ऑप्शन कैनॉट बी द आंसर. एक्सेलरेशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज. यूवी रेज तो हमें चाहिए. एक क्वेश्चन में एग्जाम पूछा था कि यूवी रेज का रेंज कितना होता है? बिटवीन 100 to 400 नैनोमीटर. इसका यूनिट क्या है? 10⁻⁹ नैनोमीटर इज द यूनिट. सो एक ही ऑप्शन, हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करने के बाद एक ही ऑप्शन में हम पहुंचते हैं, ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमोस्फियर. बिकॉज जितने भी सब हीट वेव्स आते हैं, बिकॉज अगर ये अर्थ है, जो भी सनरेज से आया, ग्राउंड में हिट होने के बाद जब वापस जाता है एटमॉस्फेयर में ट्रैप अप हो जाता है, इसी को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं. द इनकमिंग सोलर रेडिएशंस व्हाइल आउटगोइंग आर बीइंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर. दीज ट्रैप्ड गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. सो दिस इज द कंडीशन बाय व्हिच वी कैन गो फॉर द बेस्ट अप्रोच टू इट. ओके, सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है नीलगिरी थार के ऊपर. प्यारे बच्चों, दूर से पहाड़ हमको ग्रीन दिखता है, बस ये नीलगिरी ही एक पहाड़ है जो आपको बोला जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स. एक एग्जाम में पूछा था कि नीलगिरी ब्लू माउंटेन कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फूल है नीलकरंज, नीलकरंज फ्लावर के वजह से इतने नीलकरंज फ्लावर है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है. बट एनीवे, आवर क्वेश्चन इज अबाउट नीलगिरी थार. तो कौन कौन से कैटेगरी में कंडीशंस आते हैं? पहले ऑप्शन से पहले हमें यहाँ पे
फोकस देखना है कि which of the following statements given above is or are correct, मतलब इसमें करेक्ट क्या है पूछा है। तो चलो देखते हैं। इट इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड बाई IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, IUCN हेडक्वार्टर है ग्लैंड। कौन एनिमल, कौन इंसेक्ट किस कैटेगरी के डेंजर जोन में आता है, ये इंफॉर्मेशन हमको देता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक, IUCN प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेड डेटा बुक। अब इस कैटेगरीज में टोटल 9 कैटेगरीज इंक्लूड है, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्पीशीज होंगे जो डाटा हमारे पास सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ ऐसे स्पेसीज है जो बहुत लीस्ट कंसर्न्ड है, कुछ ऐसे स्पेसीज होंगे दोज आर नियर थ्रेटेंड, लाइक दैट vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in wild, extinct। तो ऐसे होके टोटल हमारे पास 9 कैटेगरीज हैं जो कि सारे इस रेड डेटा बुक में अवेलेबल हैं। और नीलगिरी थार का रेपुटेशन कुछ ऐसा है कि दिस इज एंडेंजर्ड, नो दिस इज कंप्लीटली एंडेंजर्ड। सो दिस ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन 2 इज सेइंग दैट इट इज एंडेमिक टू ईस्टर्न घाट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नीलगिरी है, ये नीलगिरी इन दिस माउंटेन रेंज इट बिलोंग्स डेडिकेटेड टू वेस्टर्न घाट, सो देयर इज नो कनेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट हियर, सो इट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड एंड बिलोंग टू वेस्टर्न घाट। सो ये ईस्टर्न घाट नहीं होगा, वेस्टर्न घाट होना चाहिए। सो दिस ऑप्शन स्टैंड्स रॉन्ग। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ केरला, नो इट इज अ स्पेशल एनिमल ऑफ तमिलनाडु स्टेट। So this option is also incorrect. So with 2 options being eliminated, हम एक ही point में आंसर को conclude करेंगे। Here the only right answer is 1, so we will go for 1 is only correct. Okay, let's moving on to the next question. अब इसमें पूछा है कि which of the following states is भद्रा टाइगर रिजर्व लोकेटेड। तो फ्रेंड्स टाइगर से एक ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब जब बात टाइगर रिजर्व्स की होती है तो हमें ये डेट याद रखना है कि 1973। आपको पता होना चाहिए कि टाइगर रिजर्व में आज के डेट में इंडिया में 55 टाइगर रिजर्व है। 55th कौन सा है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, एंड सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। दीज ऑल आर दी बाय डिफॉल्ट नोन आंसर्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉरएवर। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 54th है धौलपुरी करौली व्हिच इज प्रेजेंट इन राजस्थान। बिगेस्ट टाइगर रिजर्व श्री साइलम इन आंध्र प्रदेश, एंड सबसे छोटा है बोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी व्हिच इज इन महाराष्ट्र। तो ये 4 तो आपको हमें से याद रखना है। हमेशा क्वेश्चन इसमें डेफिनेटली आता है, क्योंकि हर 3-4 साल 5 महीना 2 महीना में टाइगर रिजर्व्स अपडेट होते हैं, तो हो सकता है अभी नेक्स्ट अपकमिंग भी कुछ आ जाए। तो टाइगर रिजर्व का डेट है 1973। वैसे अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन द ईयर 1973। सिमिलरली प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च्ड इन द ईयर 1975। Project Elephant launched in the year 1992, Project Vulture in the year 2009, Project Snow Leopard भी अगर आपको पूछेगा, Snow Leopard 2009। कोरोना पैंडेमिक में हम सब झूल रहे थे, तो 2020 में दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट लायन एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। So ultimately this Bhadra Tiger Reserve it belongs to the state of Karnataka। इंडिया में मध्य प्रदेश जो स्टेट है, इसकी खासियत यह है कि क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ है, नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश। इंडिया में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से यूनियन टेरिटोरी में है, देन यू शुड राइट द आंसर एज अंडमान एंड निकोबार। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which organization is responsible for the initiative known as Global Species Action Plan online platform? So it is none other than headquartered at Gland is known as IUCN. So ये जो global species का identification, देखो इसमें वर्ड आ गया ना species, तो species different species, कितने टाइप के species हैं, 9 कैटेगरी के species डेंजर जोन में है। उन सब के species के लिस्ट किसके पास है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक कौन बनाता है, IUCN बनाता है। सो इसलिए आंसर इज IUCN। नाउ इफ यू विल सी व्हाट आर द कलेक्शंस वी हैव मेड विद दिस। हमने एक रामसर कन्वेंशन देखा, इसका एंटायर पिक्चर हमने देखा। रामसर किसको बोलते हैं, डेंजर जोन में मॉन्ट्रेक्स आता है, कौन कौन से चीजें हैं। फिर हमने यहाँ पे मीथेन गैसेस के ग्रीन हाउस गैसेस में कुछ क्वेश्चंस पिक किए।
फिर हमने नीलगिरी थार में ये जो IUCN के बारे में डिटेल्स हमने देखा. Fourth question we have picked up from Tiger Reserve. These are the connected questions interlinked to that view. एंड दिस फिफ्थ क्वेश्चन, क्योंकि बस एक ही वर्ड था मेरे लिए काफ़ी है स्पीशीज को चुनना IUCN. सो डियर फ्रेंड्स, ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से ही एलिमिनेशन होगा क्वेश्चंस का, और राइट क्वेश्चन को हम पिक करेंगे. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि हमें सब आता हो, कि आपको सब जानते हो. कभी कभी सब जानने के बाद भी क्वेश्चंस को पिक करना, उनको एलिमिनेट करना और उनको स्क्रूटिनाइज करके परफेक्टली वे में अप्रोच देना, यही सब चीज़ आपको इस इंस्टीट्यूट में बताया जाएगा. ये 3 साल से लीडिंग इंस्टीट्यूट है, इसमें सिलेक्शंस भी हो रहे हैं. दिल्ली से फैकल्टी, भुवनेश्वर से फैकल्टी आपके डेडिकेटेड वे में रहेंगे अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर अजीत कुमार दास सर. सो होपफुली आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग आइए, हमारे साथ जुड़िए और रिजल्ट्स करके दिखाइए. दिस इंस्टीट्यूट इज सो प्रीमियर, इट हैज प्रोड्यूस्ड thousands of selections of students. So I wish you just all the very best and wish you ahead. Thank you so much.